What's up champions? Welcome back to Grand Acad और आज मैं आपको बताने वाला हूँ mistakes that you should not make under any circumstances in your class 12 English exam. देखो guys, हमारे वीडियोस वैसे भी स्क्रिप्टेड होते नहीं हैं, लेकिन इस बार तो मैं सिर्फ पॉइंट्स लिख के आ गया हूँ. एंड आई जस्ट वॉन्ट टू encourage you to chill a little. ये आप अपना इंग्लिश एग्जाम के एक दिन पहले देख रहे होगे, सो here, share this coffee with me, man. It's a really nice coffee. Sorry to those who like sugary coffee. इसमें शुगर नहीं है, तो अगर आपको डालनी है आप अलग से डाल लीजिए. Anyway, with that out of the way, I just wanted to tell you about a few things जो आपको पता होनी चाहिए when it comes to your English board exam. And ये सिर्फ मैं उसकी बात करने वाला हूँ जो आपको जानने की सख्त ज़रूरत है. अब देखो बेटा, मिस्टेक्स तो ऑब्वियसली कई ऑब्वियस मिस्टेक्स होती हैं, लाइक आप गलत पॉइंट्स मत लिख के आ जाओ, बिना पढ़े कोई चीज़ को आंसर मत कर दो, क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखो, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो. वैसी चीज़ मैं आपको नहीं बताने वाला. दीज आर सम थिंग्स दैट वुड हेल्प यू in a general sense but will not be that obvious. Number one, I want to start this video off by saying there are lots of people जो comment कर रहे थे कि सर आप ये टिप देते क्यों हो, it is obvious. But guys, ये हमें obvious लगती है, लेकिन बहुत लोगों को, especially जो लोग डमी स्कूल्स में हैं, उनके लिए obvious नहीं है. We need to cater to everyone. So tip number one is आप class 12 English में please कहीं पे भी points में मत लिखिए. अगर आपसे पूछा जाता है mention any 2 points, then you can say point number 1, point number 2, ऐसे words में लिखे so that it's still in the paragraph format. Guys, कहीं पे भी, especially in the literature section, प्लीज डू नॉट राइट इन पॉइंट्स. आपको बहुत ही गंदा इंप्रेशन पड़ेगा आपको इफ यू राइट इन पॉइंट्स. प्लीज, आपका जो भी इंप्रेशन है, इट विल बी एब्सोल्युटली रूइंड. इवन इफ यू अटेम्प्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नाइसली, यू अटेम्प्ट राइटिंग स्किल्स नाइसली, प्लीज डू नॉट राइट इन पॉइंट्स. हर चीज आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखनी है. इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन फॉर लॉन्ग आंसर्स, और शॉर्ट आंसर्स के लिए 2-3 लाइन्स विद कॉन्टेक्स्ट. दैट इज इट. नंबर 2 इज नॉट फोकसिंग ऑन प्रेजेंटेशन. गाइज देखो, whether we like it or not, class 12 English में presentation तो matter करती है. And if you've ever seen a very nice, beautiful answer sheet, you will know what I'm talking about. But I'm not here to tell you that you should focus on the aesthetics of your answer sheet. You should focus on how readable it is, how legible it is. Guys, देखो, 1-2 दिन में किसी की handwriting कोई edifyingly beautiful तो हो नहीं सकती. But what I want to encourage you to do is try to write in a more spaced manner. थोड़ी और lines छोड़िए, थोड़ा wide लिखिए, and make sure that whatever you're writing is legible and readable. Because जितनी ambiguity बेटा आप create करोगे, my dear champions, in your answer sheet, the more of a chance you have to lose those marks. So the less ambiguity the better. उसके लिए neatness पे focus करो. Leave a line after every question. Draw lines after each section or question that you complete. Preferably question, but time चला जाएगा तो I can understand if it's section. Start every section on a new page. जब भी आप writing skills में boxes बना रहे हो, उन्हें neatly बनाओ. Try to avoid cutting too many words. And इसके लिए I would encourage कि अगर आपको किसी word के spelling वेलिंग नहीं पता, आप उसे लिखो ही मत. Don't take that risk. Number 3 is not revising key themes, points and poetic devices. देखो बेटा, themes are very important this year due to your competency questions and because they help you contextualize your short answers as well. Number 2, poetic devices are very very important when it comes to literature. Poetry वाला जो section है, because अगर आप पोएटिक डिवाइसेस नहीं समझते, लिटरेरी डिवाइसेस नहीं समझते, आप पोम ही नहीं समझ पाओगे. अगर आपने अभी तक वो रोट लर्न नहीं करे हैं, तो जो ग्रैंड अकैड की एनिमेटेड वीडियोस हैं पोएट्री पे, लिंक मैं कर दूंगा डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में. वहां पे आपको सारे के सारे पोएटिक डिवाइसेस मिल जाएंगे और मैंने उसमें टेक्स्ट में ही हाईलाइट कर रखे हैं. तो एक बार उन्हें देख लेना, कोई सेपरेट वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है. आपकी पोएट्री भी रिवाइज हो जाएगी और आपके पोएटिक डिवाइसेस भी रिवाइज हो जाएंगे. प्लीज डू नॉट गो इनटू द एग्जाम विदाउट लर्निंग पोएटिक डिवाइसेस फॉर the poems. You don't need to know all the poetic devices for the chapters. Obviously you need to know some in order to answer your competency questions, but you can generate them when you think about the chapter. For poetry you need to know them verbatim. मतलब आपको word to word पता होने चाहिए, तो इनको रिवाइज करके जाना. Themes के लिए बेटा मैंने सुबह एक वीडियो डाला था जिसमें हमने class 12 English 100 minutes में रिवाइज करी है. उसमें मैंने more or less सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट themes जो चैप्टर्स की हैं वो डाल दी हैं. उसकी भी लिंक मैं आपको दे दूंगा, वो भी आप देख लेना, या फिर आप ग्रैंड अकैड इंग्लिश इन 100 minutes सर्च कर सकते हो. नंबर 4, एक दिन पहले अगर आप एनसीईआरटी को नहीं देख रहे, वो भी बड़ी गलती है. नाउ मैं ये नहीं कह रहा आप उठा के एनसीईआरटी पढ़नी शुरू कर दो. नो, आई एम जस्ट सेइंग ओपन द एनसीईआरटी एंड स्किम रीड. आपने कोई हाइलाइट्स करी होंगी, अगर नहीं भी करी हैं तो जस्ट रीड, ऐसे ही स्किम रीड करो, फ्लिप करो. देखो बेटा, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं, माय डियर चैंपियंस. कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस आ रहे हैं. इन चीज़ों के लिए हमें एनसीईआरटी की थोड़े से कीवर्ड्स, एनसीईआरटी की थोड़ी फेमिलियरिटी चाहिए. तो पूरा हम रिवाइज नहीं कर सकते. इट इज कंप्लीटली अनरियलिस्टिक. बट येस, व्हाट आई वुड रिकमेंड ऑल आवर चैंपियंस टू डू इज टू स्किम रीड थ्रू द एनसीईआरटी. थोड़ा फ्लिप करो. एंड इफ यू डोंट डू दैट, इट इज गोइंग टू प्रोबेबली कम बैक टू हर्ट यू इन द एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस स्पेशली, एंड यू विल हैव अ लैक ऑफ कीवर्ड्स टू राइट इन द टफर लॉन्ग क्वेश्चंस. Mistake number 5, you are overestimating your ability to write answers quickly. Guys, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्लास 12 इंग्लिश का एग्जाम in all probability is going to be extremely lengthy.
आपने जो भी सैम्पल पेपर अटेम्प्ट किया है उससे भी लेंदी होगा, पास्ट ईयर पेपर अटेम्प्ट किया है उतना लेंदी तो ज़रूर होने वाला है। तो अगर आप चिल हो जाओ एग्जाम में और आप सोचो कि आपके पास बहुत टाइम और आप रिलैक्स होकर लिख रहे हो, दैट इज़ प्रॉबेबली गोइंग टू नॉट बी द बेस्ट थिंग टू डू, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी अ लेंदी एग्जाम एंड इसमें आपको काफ़ी थिंकिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज एज वी नो अनसीन कॉम्प्रिहेंशन भी थोड़ा हाई लेवल हो गया है, लॉन्ग क्वेश्चंस भी थोड़े हाई लेवल के हो चुके हैं। सो द थिंग दैट यू नीड टू डू इज दिस, you need to ensure that while you're in the examination hall, when you're taking your exam, please be ready and have your eyes on the clock. It is extremely important for you to do that. अगर आप ये नहीं करते, high chances आपके पेपर छूट जाएंगे। Eyes on the clock guys. Time your sections. Time management पे अगर वीडियो चाहते हो छोटा सा ऐसा ही चिल सा, then let me know. Mistake number 6, switching up your strategy last minute. कोई कुछ भी आके बोल देता है, आपको पता है इंग्लिश में बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही है, कुछ भी बोल देते हैं, हवा बना देते हैं किसी भी चीज़ का। अगर आपको ABC की आदत है बेटा अभी और आपने उसको प्रैक्टिस कर रखा है कि आप ABC में अटैम्प्ट करते हो, वैसे ही अटैम्प्ट करो। आपकी प्रैक्टिस है CBA में अटैम्प्ट करना, वैसे ही अटैम्प्ट करो। मैं तो किसी को रेकमेंड ही नहीं करता कि वो BCA अटैम्प्ट करें, लेकिन मैं आपको इधर आके बोल भी देता हूँ कि अगर आप ये बचपन से करते हुए आ रहे हो, सालों सालों से कर रहे हो, तो मेरी बात मत सुनो। आपकी हैबिट मेरी एडवाइस से ऊपर नहीं हो सकती। तो आपकी जो हैबिट है इस टाइम पे हमें चेंज नहीं करनी, किसी का कुछ नहीं सुनना हमने। नंबर 7, ऑथर नेम्स और पोम के नेम्स, सॉरी पोइट्स एंड पोइटेसेस के नेम्स आपको याद करने हैं। मोर इंपॉर्टेंट फॉर पोइट्री, लेस इंपॉर्टेंट फॉर लिटरेचर। लेकिन अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में ऑब्वियसली आपको चैप्टर्स के बारे में बात करनी होगी, ऑथर्स के बारे में बात करनी होगी, तो उसके लिए अगर आपको ऑथर के नेम पता है, दैट विल एड अ गुड spark to your answers, a sparkle to your answers. So first, learn the names of all the particular poets and poetesses. ठीक है, Aunt Jennifer Tiger, Adrienne Rich, okay, A Thing of Beauty, John Keats, Keeping Quiet, Pablo Neruda. ठीक है, ये आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। मदर एट 66, कामला दास। अब आई नो दिस बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, राइट, बट यू मे नॉट। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सोने से पहले या बिफोर योर एट द एग्जामिनेशन सेंटर आपको ये सारी चीज़ें पता हैं। चैप्टर्स के भी, स्पेशली विस्टास के मैं रिकमेंड करूँगा, आप याद तो कर ही लो। आपको पता होना चाहिए थर्ड लेवल किसने लिखा है, टाइगर किंग किसने लिखा है, कमेंट्स में बताओ टू रिवाइज। एंड हाँ गाइज, एक और टिप दे दूँ, काफ़ी लोग क्या करेंगे, आपको एग्ज़ाम के दिन 4-5 बजे उठा देंगे कि ये कुछ लाइव होने वाला है, रिवीजन होने वाली है, कुछ रिवील होने वाला है, कुछ भी होने वाला है। ठीक है, शायद आपके मोहल्ले में कोई ये कर रहा होगा, शायद कोई और कर रहा होगा। प्लीज़ डू नॉट फॉल इनटू दिस ट्रैप। सुबह आपको रिलैक्स होना है। हमारी ब्रेन एवोल्यूशनरली स्लो मॉर्निंग्स के लिए बनी है। सुबह सुबह अपने आप को इतना स्टिमुलस हमें नहीं देना है। आराम से उठिए, लिसन टू योर फेवरेट म्यूजिक, रिलैक्स फॉर अ वाइल एंड देन बिगिन स्टडिंग, लेकिन इतनी हबड़ तबड़ में नहीं, एंड डू इट अकॉर्डिंग टू योर ओन स्टाइल एंड ओन पेस. Don't depend on anyone for last minute revision because it is very individualized and nobody can individualize something that is made for the larger masses. Okay, so I hope you've understood all of this, these mistakes that you should not be making. Ninth, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ninth mistake would have to be over analysis. आप बार बार सैम्पल पेपर्स कर रहे हो, बार बार अपने आप को क्रिटिक कर रहे हो, बार बार सोच रहे हो कि आपकी फ्लॉज क्या हैं। गाइज, आपका पेपर इतनी डिसर्निंग आई से चेक नहीं होगा। तो जो 9th एरर है ओवर एनालिसिस का, दिस कैन एक्चुअली ब्रिंग समवन हु इज मेंट टू स्कोर 100 बैक टू द 85s 90s. तो प्लीज try to not overthink things. You're in your control, you're a Grand Acad champion, and I'm sure that you will make this happen. All right, till next time, keep winning, you champions.